we are heading towards our target of 100 pool of MCQs, and if required we can extend it also. It's up to you to decide where we should stop. If you want me more, that can be done. If you are satisfied, then no issue. We'll decide tomorrow. Today, in the pool of the collection of 100 questions, we are heading towards the fifth question paper, and that question paper is, see here, code you can see here 30 bar 5 bar 1, and series you can see here EH5GF. We are continuing with this question paper. Now let us see what are the type of questions that are asked in the examination. Now you see here, the first question says root 3 plus 2 whole square plus root 3 minus 2 whole square is an what? See, yesterday we had done one type of problem there, and at that time we have subtracted. Today we are adding. Remember, we are using the formula a plus b whole square, or first term plus second term whole square. See here, first term means what? Root 3 square. Root 3 square is how much? Root 3 square means first term square a, plus b square means 2 square, that is 4, right? We are not interested what answer we are going to get. We are interested what type of answer, what is the nature of the answer. So first term square is 3, that is root 3 का square 3 होगा. Second term square 2 का square 4 होगा. 2 into AB यानी 2 into 2 4, 4 into root 3 कितना होता है ये? 4 root 3. अगेन b के अंदर फिर से कैलकुलेट मत करो, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या होगा? 3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस हाउ मच? 4 root 3. See here, irrational part will get cancelled here. Irrational part will get cancelled here and rational part will remain. So what should be your answer? It is positive irrational number, positive irrational number, negative rational number, negative irrational number. What should be your answer? Positive rational number. So your expected answer here is 1A. आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर? 1A. सर एग्जाम में हमको क्या करना है? एग्जाम में आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है. एक याद रखो आपकी, अगर आप प्लस कर रहे हो तो इर्रेशनल पार्ट कैंसिल हो रहा है. इर्रेशनल पार्ट कैंसिल हो रहा है तो जो भी बचेगा वो पॉजिटिव रैशनल पार्ट ही बचेगा. इसलिए ये सब कैलकुलेशन आपको दिखाने की वहां जरूरत नहीं है. अगर यहाँ माइनस होता है तो रैशनल पार्ट कैंसिल होगा और इर्रेशनल पार्ट बचेगा, और प्लस होता है तो इर्रेशनल पार्ट कैंसिल होगा और रैशनल पार्ट क्या हो रहा है? बच रहा है. ओके, सो यू नीड नॉट शो ऑल दिस कैलकुलेशन, इट्स क्वाइट अंडरस्टूड. ओके, right. Now the next question here is, if let ax is equal to a square b cube c raised to n. What is it? A square b cube c raised to n. Y is equal to a cube b raised to m c square, where a, b, c are prime numbers. The LCM of x and y is a cube b raised to 4 c raised to 3. Then the value of m plus n. देखिए आपको एलसीएम उसका दिया है. किसका एलसीएम दिया है? ये एक्स और ये वाई का एलसीएम आपको दिया है. उन्होंने आपको एलसीएम दे दिया है. क्या दिया एलसीएम? ए क्यूब, ओके, बी रेस टू 4, और क्या दिया है आपको एलसीएम? 3, सी रेस टू 3. थोड़ा सा देखेंगे हम. देखिए यहां पर क्या दिया आपको? सी रेस टू एन दिया है, और यहां पर सी रेस टू क्या दिया है आपको? सी स्क्वायर दिया है. अगर एलसीएम सी क्यूब होना है तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एलसीएम अगर सी क्यूब होना है यहां पर तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, राइट? एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए. और दूसरा क्या आपको दिया है? बी रेस टू एम दिया है और बी रेस टू बी क्यूब दिया है, और यहां पर क्या दिया है बच्चों? बी रेस टू 4 दिया है. यानी एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वहां पर? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द एलसीएम विल बी बी रेस टू 4? इट हैज टू बी 4, इजंट इट? तो m की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी. और m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहां पर? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? B. सो द एक्सपेक्टेड आंसर हियर इज 2B. यानी व्हाट इज गिवन इज, यू हैव बीन गिवन द एलसीएम ऑफ x एंड y, और बाद में आपको बोल रहा है कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगी. सो m की वैल्यू यहां पर हो रही है 4, और n की वैल्यू यहां पर हो रही है 4, 3, और 4 प्लस 3 इज हाउ मच? 7. फॉर एनी प्राइम नंबर, for any prime number, if p divides a square,
then a is any real number, then p also divides what? अगर कोई एक प्राइम नंबर है, अगर एक संख्या उसके स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो संख्या किसको डिवाइड करेगी? For any prime number p, if p divides a square, for example, if 2 divides, suppose if I say if 2 divides 4 square, then can I say that 2 divides 4? Can I say that 2 divides 4 also? दो की संख्या में अगर 4 का स्क्वायर जाता है तो 16 दो 16 को डिवाइड करता है, तो दो को भी डिवाइड, 4 को भी डिवाइड करता है। यानी इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p शुड डिवाइड व्हाट? p शुड डिवाइड a आल्सो। तो ये ऑलमोस्ट 0 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 3a इज द करेक्ट आंसर। 3a इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो 3 divides a is the correct answer. Next, which of the following is a quadratic equation? देखिए, which of the following is a quadratic equation बोलते हैं मेरे दिमाग में, ये चारों को एक्चुअली चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली ये चारों को चेक करना पड़ेगा, मगर मैं थोड़ा कॉमन सेंस यूज करता हूं बच्चों। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। यानी इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर होगा, और यहां का एक्स स्क्वायर टर्म और यहां का एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं सकता। कॉमन सेंस कैसे यूज कर रहा हूं? सब 4 के 4 सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट, ये एक्स क्यूब है, और यहां पर भी एक्स क्यूब टर्म भी आएगा और यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म भी आएगा। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो दिस इज a प्लस बी होल क्यूब, और a प्लस बी होल क्यूब होता है बच्चों, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। यानी यहां पर भी क्या होगा बच्चों? एक्स क्यूब टर्म चला जाएगा, एक्स स्क्वायर टर्म चला जाएगा, और क्यूबिक टर्म भी जाएगा, क्वाड्रेटिक टर्म भी जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। और सर ये आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या? नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या कर रहा हूं? आई एम यूजिंग दिस माई व्हाट इज इट, द पावर ऑफ डूइंग इट इन माई ओन माइंड। माइंड के अंदर मैं करने का मैं पावर यूज कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो रहा है, यहां पर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो रहा है। यहां पर भी आप देखो x इंटू एक्स, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और इसका आंसर आता क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। और यहां पर भी क्वाड्रेटिक टर्म क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर। फाइनली यहां पर भी जो क्वाड्रेटिक टर्म आएगा वो भी कैंसिल होने वाला है। तो बचता कौन सा ऑप्शन मेरे पास है? बी ऑप्शन बचता है। मगर ये सारा कैलकुलेशन आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको करना है, विद इन फ्यू, आई मस्ट से दैट 30 सेकंड्स के अंदर हो जाना चाहिए। सर चेक करना है मुझे, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर है बच्चों, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या होगा? 2x इंटू रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, और यहां पर होगा बच्चों 2x रूट एक्स। तो ये 2x रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच रहा है, जो क्वाड्रेटिक है। मगर सर ये क्या ये करने की जरूरत है? नहीं है, मैं तो आपको चेक करा के मैं बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है। तो हाउ यू मस्ट एंटिसिपेट, quadratic term is getting cancelled, cubic and quadratic term is getting cancelled, quadratic term is getting cancelled, so all these three cannot be quadratic, and that's why this is quadratic. That's why this is quadratic. X square plus bx plus b has two real and distinct roots, then the value of b is, देखिए real and distinct root बोला है, पिछली बार क्या बोला था? इक्वल रूट्स बोला था। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज 0। मगर यहां पर क्या है? रियल भी होना चाहिए, अलग अलग रूट्स आना चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट आना चाहिए। तो वो देखो एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में आता है चैप्टर 11 स्टैंडर्ड के अंदर। मगर आपको इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मन में कैलकुलेशन मैंने किया, मैंने b की वैल्यू 0 डाल दी, मैंने यहां पर b की वैल्यू 0 डाल दी, तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और b की जगह पे क्या डाला है आपने? 0, और यहां पर भी b की जगह पे आपने क्या डाला है? यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 0, यानी इक्वल रूट सी आएगा यहां पर, और x की वैल्यू 0 कैसे आ सकती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा। इसलिए इसके बारे में सोचना भी गलत है, सोचना भी गलत है। मान लीजिए यहां पर अगर x की वैल्यू, b की वैल्यू मैंने 4 डाल दिया,
तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 4 डाल दिया, यहाँ पर भी बी की जगह पे 4 डाल दिया, तो बच्चों इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2, 2 बार आएगा। सही है ना बच्चों, क्योंकि ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, यानी रूट्स आर रियल बट दे आर इक्वल। इसीलिए मैं x की वैल्यू 4 को भी मैं क्या कहूंगा, गलत कहूंगा। अब मैंने मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने b को अगर 3 डाला, तो 3 अगर मैंने डाला बच्चों, तो ये क्या होगा जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज इट, 3b, सॉरी 3b नहीं, 3x प्लस b की जगह पे मैं क्या करूंगा, तो ये इक्वेशन अगर मैंने इफ आई सब्स्टिट्यूट b एज 3, देन इट विल बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। और इसको अगर थोड़ा कोशिश करो सॉल्व करने की, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा देखो, बी स्क्वायर यानी कितना होता है बच्चों 9, 4ac यानी कितना, 4 इंटू 1 इंटू 3 यानी कितना होगा 4ac, 4ac यानी a है 1, c कितना है 3, तो 9 माइनस 12 कितना होता है -3, रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी आएगा, यानी आंसर हमारे पास क्या बचता है, आंसर क्या बचता है, अगर -3 डालूंगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर -3x-3। आप जानते हो इसको कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है, सॉल्व आपको नहीं करना है, सॉल्व आपको नहीं करना है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। तो यानी पॉसिबिलिटी क्या है, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 5, 5 क्या है डी। सर ये सब क्या करना है, हाँ 0 डालने के बाद क्या हो सकता है, मन में सोच लो, खत्म। 2 डालने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इक्वेशन, ये डालने के बाद अगर इमेजिनरी आ रहा है तो बच रहा है, वो तुम्हारा आंसर है। इन द गिवन फिगर बिलो पॉइंट्स पी क्यू आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, 4 समान भाग है, ये है x, ये है x, ये है x और ये क्या है x है, 4 समान भाग है। तो पॉइंट Q डिवाइड्स, दिस इज द पॉइंट Q, पॉइंट Q डिवाइड्स, पॉइंट Q डिवाइड्स PB इन द रेशियो। देखिए PB को पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये है देखो, ये है PQ, ये है PB, ये है पॉइंट Q, तो ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है आपको यहां पर, ये कितना भाग है, कितना भाग है, और ये कितने भाग है, यानी कौन सा रेशियो होगा, 1:2 कितना होगा, यानी इफ दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, सो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, 6C। कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, कोई सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। यहां पर 4 समान भागों में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये 1 भाग है, तो ये कितना भाग है, 2 भाग है, 2 पार्ट्स आर देयर। A bag contains red balls and black balls in the ratio of 3:7। बच्चों जब रेशियो की बात आती है तो हम रेशियो इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, यहां पर रेड बॉल्स कितने हैं बच्चों, 3x मैं कहूंगा, कितने कहूंगा मैं, 3x मैं कहूंगा, राइट। ब्लैक बॉल्स कितने बोला है आपको, 7x, तो ब्लैक बॉल्स मैं कहूंगा, ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 7x है, तो टोटल बॉल्स कितने हैं बच्चों, टोटल बॉल्स कितने हैं, तो एक बैग के अंदर 3:7 रेशियो में ब्लैक और रेड बॉल्स है। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर, व्हाट इज द टोटल रेशियो, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, 10, ब्लैक कितने उसके अंदर, तो टोटल इवेंट्स डिजायर्ड इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स, 3:7 रेशियो अगर है तो हम रेड को कहेंगे 3x है, ब्लैक को कहेंगे 7x है, तो ब्लैक की पॉसिबिलिटी है तो टोटल इवेंट्स आर 10, ब्लैक है 7x, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 7/10। देखो यहां पर 7/10 नहीं दिया है उन्होंने, 7/10 नहीं दिया है, मगर 7
क्या दिया आपको 0.7 दिया है, तो आंसर क्या आना चाहिए 7C। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू राइट एंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, तो फिर राइट एंगल का मतलब भी एक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए ना। राइट एंगल तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 13, 5 और क्या होता है ये कितना होता है 12, या 3, 5, 3 और 4 होता है, कैसे सेम होगा। टू राइट एंगल्स कैनॉट बी सिमिलर। बाकी ढूंढने की जरूरत है क्या। फॉल्स पूछा है, 0 सेकंड के अंदर आंसर आ जाने चाहिए। पहले आंसर रॉन्ग है, पहला ही आंसर अगर रॉन्ग है तो बाकी के 3 आपको देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली मूव अहेड, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। फिर भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, ओके फाइन। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, फाइन, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये भी सही है। मगर क्वेश्चन क्या पूछा है, सारे चार में से 3 सही है, एक गलत है, तो गलत कौन सा है। अगर पहला ही गलत है तो बाकी के 3 सही है, इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको बता रहा, हर बार मैं आपको बताता हूं, टाइम सेविंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉल्स है तो बाकी के छोड़ दो। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a trapezium in which XY is parallel to AB is parallel to CD. If AX is equal to 2/3 of AD, then CY by YB. AX is equal to, ये दिखता है क्या, थोड़ा कलर देख लो, कलर उसके अंदर या रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। AX is equal to 2/3 of AD, इसका मतलब होता है बच्चों AX is equal to 2/3, है ना। यानी AX अगर 2 पार्ट है तो ये पूरा AD कितना पार्ट है बच्चों। AX अगर 2 पार्ट है तो ये पूरा AD कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। तो ये DX कितना पार्ट होगा बच्चों, 1 पार्ट होगा। DX कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट होगा। दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, दिस इज 3 पार्ट। आपको क्या पूछा है, CY बाय YB कितना होगा, कॉमन सेंस यूज करो। CY पार्ट कितना होगा, 1 पार्ट होगा, और YB पार्ट कितना होगा। यानी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 9 वाला कौन सा आंसर सही है, डी आंसर करेक्ट है। कॉमन सेंस है, ये 3 पार्ट है, ये अगर 2 पार्ट है तो बचा हुआ ये पार्ट कितना है, 1 है। तो दिस बाय दिस इज 3/2, तो दिस बाय दिस इज 1:2 होगा। दैट्स ऑल। कोई थ्योरम यूज नहीं कर रहे हम यहां पर, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है यहां पर।